Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, class 9, chapter 6, lines and angles. Everyone know about lines. You have read in the previous classes what are lines. Okay? Lines are of three types. One is line segment. Second is ray, and third is straight line. Straight line. Line segment. Line segment are the line whose both the points are definite. ओके जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके. रे whose only one point is definite, okay, and straight line whose both the points are indefinite and they can be extended endlessly in both the direction. They can be extended endlessly in both the direction. Line segment cannot be extended endlessly. Ray, it can be extended endlessly in only one direction, okay, and straight line, it has no definite point, it can be extended endlessly in both the direction. Okay, so after line in this chapter you have to read about angles. What is angle? Angle, when two rays meet at a common initial point, when two rays meet at a common initial point, that is known as angle. Okay, suppose this is ray OA, this is ray OB, they meets on a common initial point. मतलब ये initial point OA का भी initial point O है और OB का भी initial point O है, ठीक है. they make an angle. This initial point is known as vertex. इस initial point को हम क्या कहते हैं, vertex. और ये जो दोनों हैं OA और OB, ये दोनों क्या कहलाते हैं, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स ऑफ एंगल, OA and OB, vertex O. Okay, and what is the name of this angle? The name of this angle, where the angle formed, the common initial point should be in the middle. It is written like AOB, angle AOB or angle BOA. Okay, so this is the definition of the angle. What? Two rays OA and OB having a common end point O. When two rays meet at a common initial point, they makes an angle. जब दो रे किसी भी कॉमन इनिशियल पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं, और इस एंगल में वर्टेक्स होगा O, आर्म्स इसके होंगे OA और OB, और एंगल जो होगा इसे लिखा जा सकता है AOB और एंगल BOA. Now the next topic is region of an angle. Suppose this is angle AOB, this is angle AOB, this is A, this is O, and this is B. There are two regions of an angle. This is known as interior of the angle. This area is known as interior of the angle. Interior. Okay. Suppose a point D is here. You can write that point D is in the interior of the angle. इस एंगल के चारों तरफ जो भी एरिया है, सपोज यहाँ पॉइंट E है, तो ये E जो होगा क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. और ये जो पॉइंट B है, B को क्या कहेंगे, B इज ऑन द एंगल, A इज ऑन द एंगल एंड O इज ऑन द एंगल. ठीक है, तो दो इसके रीजन होगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. ठीक है, उसके बाद से तो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द एंगल, ये दो टॉपिक हो गए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ऑफ एन एंगल. मेजर ऑफ एन एंगल, सपोज दिस इज एन एंगल OA and this is OB. Okay,
द टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, ओ ए से ओ बी की ये जो टर्निंग होती है दैट इज नोन एज मेजर ऑफ द एंगल एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड विथ डिग्री। किससे डिनोट करते हैं? डिग्री। सपोज 45 है तो 45 डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। ओके, तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। द टर्निंग ऑफ from this point to this point is known as the measure of the angle. Now the measure of the angle is always written in degree. 1 degree, what is the measurement? 1 degree is equal to 60 minutes. 60 minutes, it is denoted like this. 1 degree equal to 60 minute, and 1 minute equal to, you know that 1 minute equal to 60 second. This is seconds. Okay, the calculation will be done, the subtraction and addition of the degree will be done like this. 1 degree equal to 60 minute and 1 minute equal to 60 second. Okay, now the next topic is kind of angles. Kind of angle, there are so many type of angle. In a circle, what is the measure of the angle? It is 360 degree. So total angle measure 0 degree to 360 degree. You have used protractor. Protractor is half of the circle. प्रोटेक्टर क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्किल होता है। तो उसमें आप देखोगे 0 से लेके 180 तक पॉइंट बने होते हैं। तो 2 प्रोटेक्टर मिलाओगे तो एक सर्किल हो जाएगा। तो 180 हाफ एंड 180 हाफ, कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। ओके, सो काइंड ऑफ एंगल, फर्स्ट एंगल इज जीरो एंगल। Zero angle, the angle whose measure is 0 degree, the angle whose measure is 0 degree, 0 degree, that is known as zero angle. Its structure is like this. This is 0, this is A, and on the same point the B will be there. ओके, दैट इज द मेजर ऑफ जीरो एंगल। तो जीरो एंगल हो गया जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो। अब 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो अगली कैटेगरी है 0 to 89.9, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इज मोर देन 0, ठीक है, एंड मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो क्या हो सकता है? ये कोई भी एंगल हो सकता है इस तरह का, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये ओ हो गया, एंड दैट इज बी। ये कोई भी एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच, 30 डिग्री, 31, 32, 89.9 तक, ये सभी क्या हो सकते हैं? ये सभी जो है आपके एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद अगली कैटेगरी आती है राइट एंगल। राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, दैट इज नोन एज राइट एंगल। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज ए ओ एंड दिस इज बी। AOB इज द राइट एंगल। ओके, राइट एंगल के बाद अगली कैटेगरी 90 डिग्री से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद अगला आता है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री डायरेक्टली हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसका मेजरमेंट क्या होता है? अब ऑब्ट्यूस एंगल का देखो, हमने यहाँ मेजरमेंट नहीं बताया, ये फिगर नहीं बताया, ये इस तरह का फिगर हो सकता है, ठीक है। ये आपका ऐसा फिगर हो सकता है क्योंकि मोर देन 90 है, तो 90 आपकी यहाँ तक होती है, तो इससे अधिक मतलब ये OA और ये OB।
कहीं भी 90 से 180 के बीच में। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो मेजर होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। इसका आप इमेज ऐसे बना सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी। ओके, और सभी एंगल्स में ये आप बनाना नहीं भूलेंगे, यहाँ बेस से ये टर्निंग हो रही है, बेस से ये टर्निंग हो रही है, ठीक है, यहाँ भी बेस से ये टर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट एंगल है आपका रेफ्लेक्स एंगल। रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, मोर देन 180, more than 180 and less than 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ही आ जाती है, तो ये आप तो आपको 180 डिग्री हो जाता है, तो इससे ऐसे कर्व कर देना है और ये जो कर्व है ये ऐसे होगा, ठीक है। दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए ओ बी इज ए रेफ्लेक्स एंगल। ओके, 7th नंबर क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल द एंगल हुज मेजर इज टोटल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कब होगा, जब ठीक इसी पे दोनों लाइन होगी, एक यहाँ ए हो जाएगा, एक यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ जो है टर्निंग देखो आप ऐसे करोगे पूरा, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। अब आप ये कहोगे कि 0 डिग्री का भी इमेज ऐसा ही है, कंप्लीट एंगल का भी इमेज ऐसा ही है। तो होता यह है बेटा कि 0 डिग्री में हम ये कर्व नहीं बनाते, ये कंप्लीट रोटेट नहीं कर रहा है। यह हमारा बेस है ओ ए, यहाँ से जैसे जैसे एंगल उठ रही है, पहले ओ ए पर ही दोनों लाइन रह रही है, दैट इज 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर जा रही है 0 to 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल, उसके ऊपर जा रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, परपेंडिकुलर उसको कहते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से और इधर आया तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट हो गया ये स्ट्रेट एंगल, फिर नीचे गया तो क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे आ गई ऐसे टर्न होके, तो ये हो गया आपका क्या कंप्लीट एंगल। तो दीज आर द ऑल 7 टाइप ऑफ एंगल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इक्वल एंगल। 2 angles आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर ऑफ डिग्रीज। 2 एंगल इक्वल तभी होते हैं जब उन दोनों का मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। दोनों को जब प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, दोनों का सेम अगर मेजरमेंट होगा तो दोनों इक्वल एंगल कहे जाते हैं। अगला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अ लाइन is known as the bisector of the angle when it divides the given angle into equal values। कहने का मतलब है AOB is a line, तो ये क्या है, इसका ये बाइसेक्टर जो है, सपोज OM इज द बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर तब कहा जाएगा जब AOM इज इक्वल टू BOM, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब बाइसेक्टर खींचा कैसे जाता है ये देखिए, सपोज दिस इज एन एंगल AOB, ओके। नाउ पुट योर कंपास हियर and draw an arc, okay, from these 2 points again you have to put your compass here and take half of the distance, more than half of the distance, and draw an arc here, and with the same radius from this point cut an arc here, okay. If you draw this arc, join this line, if you join this line, this will be the bisector of the angle, okay. Though this is the bisector of the angle, the line, if a line divides the given angle into equal value, okay, such that both the parts have same measurement of angle, at that time the line is known as the bisector of the angle. Now next topic is
complementary angle. What is complementary angle? If two angles whose sum is 90 डिग्री, दो एंगल जिसके सम क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, उनको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल. सपोज वन एंगल इज 30 डिग्री, सेकेंड एंगल इज 60 डिग्री. अगर इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है तो बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर. सपोज वन इज गिवन, सपोज यू आर गिवन 30 डिग्री और आपको यह बताना है व्हाट इज द कंप्लीमेंट, जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल. तो व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो सिंपली क्या करोगे 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90. तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री. मतलब दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उसे हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं. अगर एक एंगल दिया गया है तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करोगे 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है, तो ये दोनों जो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहे जाते हैं. जैसे 30 का कंप्लीमेंट 60 डिग्री और 60 का कंप्लीमेंट 30 डिग्री. ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है नेम द एंगल विच इज कंप्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. ऐसा एंगल बताइए जो अपना खुद का कंप्लीमेंट है. तो क्या होता है 45 डिग्री. 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो 45 का कंप्लीमेंट भी क्या हुआ 45 डिग्री ही हुआ. ठीक है, अब इसी तरह आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री. दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. ये दोनों पार्ट्स जिनका सम 180 डिग्री होता है दे आर नोन एज द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर. सिंपल सी इसमें भी बात है, अगर 100 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कर दीजिए. एक्स इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये हो गई आपकी कंप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, that is known as complementary angle, and both the angles are complement of each other. और ये हो गया supplementary angle. two angles whose sum is 180 degree, they are known as supplementary angle, and both the angle whose sum is 180 degree, they are complement of each other. Now come to the next topic, collinear point. Collinear point is said that if three or more points lie on a same line, अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट, सपोज करो ये एक लाइन है ए बी, ओके, इसमें 3 पॉइंट हैं, 3 4 कोई भी पॉइंट हो, मान लो ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये सभी एक ही लाइन पे हैं. एट दैट टाइम दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. इट मीन्स सी डी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन. ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स if the points are not in a line, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है C, एक यहाँ है D, एक यहाँ है E, एक यहाँ है F, तो ये क्या है, ये सभी एक लाइन पे नहीं है. That's why they are known as non-collinear points. Now we will discuss some more type of angles. Number 1 is adjacent angle. Adjacent angle is said that if two angles having common initial point, दो एंगल अगर हों, सपोज दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी. टू एंगल्स नंबर 1 हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, जैसे ए ओ सी एक एंगल है और बी ओ सी एक एंगल है, इसमें ओ क्या है कॉमन है. तो इस तरह का कोई भी एंगल हो जिसमें कॉमन इनिशियल पॉइंट हो. दूसरा हैविंग वन आर्म कॉमन, हैविंग वन आर्म कॉमन, एक आर्म कॉमन हो. तो देखिए आप ए ओ सी और बी ओ सी दोनों में ये आर्म आ रहा है, ओ सी आ रहा है, तो एक आर्म कॉमन है. और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म lies on either side
दिस इज लाइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो तीन कंडीशन होती है एडजेसेंट एंगल में। पहली कंडीशन क्या है, टू एंगल्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, दो एंगल जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। जैसे हमने बताया AOC और BOC, कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, O है। हैविंग वन आर्म कॉमन, OC ये कॉमन आर्म है, OC जो है ये कॉमन आर्म है, AOC में भी है और BOC में है। और तीसरा है नॉन कॉमन आर्म लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये तो कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये नॉन कॉमन हो गए दोनों आर्म। लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म के आइदर साइड मतलब कि दोनों तरफ होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो डिफिनीशन क्या हो गई एडजेसेंट एंगल की, टू एंगल्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, ओके, हैविंग वन आर्म कॉमन एंड नॉन कॉमन आर्म लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दैट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। Now the next type of angle is linear pair of angle. Linear pair of angle is also a type of adjacent angle. Linear pair of angle में क्या होता है, adjacent angle का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, टू adjacent angle are said to be linear pair of angle। दो adjacent angle को linear pair of angle हम तब कहते हैं if their non common arm are two opposite rays। If their non-common arm are two opposite rays, कहने का मतलब है ये आपका क्या था, एडजेसेंट एंगल का। देखिए एडजेसेंट एंगल ये हमने बनाया था, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B, और ये आपका था क्या C, जिसमें OC कॉमन आर्म था। OC इज द कॉमन आर्म, OA और OB आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म थे। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हो जाता है कि जब ये OA और OB ये दोनों दो अपोजिट रेज हो जाते हैं और OC जो है यहाँ बीच में। अपोजिट रेज मतलब एक जो है इस साइड और दूसरा उसके उस साइड। इसमें क्या है, कॉमन आर्म के आइदर साइड रहते हैं दोनों नॉन कॉमन आर्म। इसमें जो है नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर से सुन लीजिए, two adjacent angle are known as linear pair of angle when their non common arm becomes two opposite rays, जब उनके नॉन कॉमन आर्म दो अपोजिट रेज हो जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल के जो सम है, चूंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन हो जा रही है तो इसके दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। इसमें भी दो ही एंगल बनते हैं और इनका सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने के पहले ये जान लीजिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब एक दूसरे के को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है, जो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दे हैव इक्वल डिस्टेंस एंड ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसी इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट। सपोज करो ये लाइन AB है और ये लाइन CD है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है। मतलब BOC का वर्टिकली अपोजिट क्या है, AOD, और BOD का वर्टिकली अपोजिट क्या है, AOC। आगे थ्योरम में मैं बताऊंगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये बताया गया था कि थ्योरम्स के बारे में। अब यहाँ से आपका जो है ये चैप्टर 6 से आपका जो लाइंस एंड एंगल्स है, इससे आपकी ज्योमेट्री शुरू हो रही है। और ज्योमेट्री में आने पर आपको इसके बाद लाइंस एंड एंगल, इसके बाद ट्रायंगल, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में आपको थ्योरम सॉल्व करने हैं। और थ्योरम सॉल्व करने जैसे क्लास 8 वगैरह में भी आप कर चुके हो
कि द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये सारे थ्योरम जो है क्लास 8 में भी हो चुके हैं। फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू लाइंस व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सभी पेयर्स में होते हैं। पेयर मतलब क्या, जोड़ा, दो एंगल। तो ये एंगल COB या BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOD। ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसका एक थ्योरम है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। Today we have discussed some major topics related to lines and angles, chapter 6 of class 9. Before it, lesson 1st, 2nd, 3rd and 4th video I have uploaded. Okay, lesson 3 is coordinate geometry, 4th is linear pair of two variable, 1st and 2nd polynomial, 2nd is polynomial and 1st is number system. Okay, 6 lines and angles I have discussed with you. What is line, different type of line, line segment, straight line, ray. Then I have explained you what is angle, major type of angle. Okay, after it I have discussed with you collinear points, non-collinear point, adjacent angle, linear pair of angle, and the last one is vertically opposite angle. Also I have discussed with you intersecting line and parallel line. I have also discussed with you the different region of the angle, interior of the angle and exterior of the angle, measurement of angle. Okay, 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute equal to 60 seconds. I have also discussed bisector of the angle, complementary angle, supplementary angle. How can you find the complement of one angle? How can you find the supplement of one angle? So these are the topics which was discussed in this video. You all have to write that all definition in your notebook. Okay, thank you for today. Thank you for watching this video. You have to like, comment and subscribe my YouTube channel Devesh Sir Math Classes and press the bell icon so that you can get the notification of the new video. In the new video I will start some theorems of NCERT class 9 chapter 6 lines and angles, and I will also try to solve some question of exercise 6.1. Up to then, thank you very much.